Hello and a very warm welcome to all of you. Today we start with a completely new topic, that is macroeconomics. Now before we step into macroeconomics, ये जानना ज़रूरी है कि macroeconomics है किसका पार्ट, कहाँ से आया, कैसे आया. तो macroeconomics has come from economics. Now what is economics? Economics have been defined by the various economists around the world since eternity. Some of the major definitions which of economics are कि economic is the art of making most of life. It is the study of mankind in the ordinary business. It is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means, which have alternative uses. Now let us go by the thing. कुछ सबसे पहले तो ज़रूरी है जाना कि resources क्या होता है. तो resources वो सारी चीज़ें होती हैं, those goods and services. Always in economics, whenever you talk about economics, it's about goods and services. तो resources वो goods and services होती हैं जिससे हम और goods and services बना सकते हैं, right? तो वो सारी चीज़ें जिससे हम goods and services बना सकते हैं उसे हम resources कहते हैं. वो goods and services जिससे हम और goods and services बना सकते हैं उसे हम resources कहते हैं. दूसरा चीज़ है कि रिसोर्सेज जो होता है वो हमेशा लिमिटेड होता है. वी डू नॉट हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज, हेंस द वर्ड स्कार्स हैज़ बीन यूज, राइट. तो हमेशा जो भी हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि द रिसोर्सेज विच आर देयर इन द इकोनॉमी इज़ वेरी मच लिमिटेड. जितना अवेलेबल है उसी का हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, राइट. उसी का हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, उसी का देखना है कि हम और उसको कैसे बेहतरी, सो दैट देयर इज़ मैक्सिमम आउटपुट, सो दैट देयर इज़ मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, सो दैट देयर इज़ मैक्सिमम बेनिफिट, राइट. Other definitions which have been given by economists are like comes in whenever more of one thing means less of the other. ये हम लोग डिमांड सप्लाई ग्राफ में पढ़ेंगे. The theory of economics is a method rather than a doctrine, an apparatus of mind, a technique of thinking which helps its processor to draw correct conclusions. Economics is the study of the use of scarce resources to satisfy unlimited human wants, because human wants are something which goes on increasing with time, but we have scarce resources, we have limited resources, and we have to adjust according to the resources. तो कैसे demand and supply का ग्राफ बनता है, कैसे होता है. तो this economics for the purpose of the study has been divided into two major parts. One is called the microeconomics, जिसमें हम लोग इंडिविजुअल का पार्ट पढ़ते हैं. इंडिविजुअल बीइंग मीन दैट मे बी एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, एन इंडिविजुअल हाउस होम और इंडिविजुअल फर्म. लेकिन जब हम पूरी इकोनॉमी का बात करते हैं, तो इट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. आई रिपीट अगेन, जब हम लोग सिर्फ एक इंडिविजुअल का बात कर रहे हैं तो वो माइक्रो होता है. इंडिविजुअल यूनिट का बात, चाहे वो इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड का बात करें, तो जब या इंडिविजुअल मार्केट सेगमेंट का बात करें तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है. जैसे आप सिर्फ कॉफ़ी का बात कर रहे हैं या सिर्फ एक ब्रांड ऑफ कॉफ़ी का बात कर रहे हैं. लेकिन जब हम पूरी इकोनॉमी का बात करते हैं और वो सब इम्पोर्टेंट फैक्टर्स सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, नेशनल इनकम, इस सब की बातें जब हम लोग करते हैं तो इट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट. तो बेसिकली क्या है, जब हम लोग goods and services see, this is one a kind of diagram which represents the various things, which the various connection between the household and the businesses of firms, as you can see it, right. तो households क्या करते हैं, households जो हैं वो production services. What are the various production services or the factors of production? Land, labor, capital and entrepreneurs are the various factors of production. तो household जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है. किसे प्रोवाइड करता है, बिजनेस को प्रोवाइड करता है, बिजनेस या फर्म्स को प्रोवाइड करता है. और ये जो बिजनेस है, ये फर्म्स है, उसके बदले उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट. फैक्टर्स प्रोवाइड किए, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले उन्होंने उन्हें वेज, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा दिया. और ये जो फर्म्स हैं ये प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज जो हाउस होल्ड परचेज कर रहा है, और हाउस होल्ड उसके बदले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन परचेजेस जो होता है वो इनको इसमें इन्वेस्ट कर रहा है.
तो इन जनरल एन assumption here taken is कि जितना भी फर्म्स प्रोड्यूस कर रहा है वो सारा का सारा हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहा है, और हाउस होल्ड में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, राइट. सो इट इज़ लाइक देर इज़ नो सेविंग्स एक्सेट्रा विच इज़ कंसिडर्ड इन दिस पार्ट ऑफ बिजनेस. दिस इज़ अ टू सेक्टर इकोनॉमी जिसमें वो कंसिडर किया जाता है. Now, before we plunge into full-fledgedly into macroeconomics, let us give a brief review of what is the difference between microeconomics and macroeconomics. We start with the very basic, that what is the, what is the meaning, right? So as you can see, macroeconomics is this entire this is a small video which is based on what is the meaning of microeconomics. It is related to the study of individual household and firms behavior in decision making and allocation of the resources. वही जब आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का बात आ जाएगा तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आपका पूरा इकोनॉमिक को स्टडी करेगा. प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो. See, as you can see here, macroeconomics deals with the study of the behavior and performance of the total economy. जैसे वहाँ पे हमने इंडिविजुअल की बात की थी, उसी तरह से जब यहाँ पे macroeconomics का बात आता है, macroeconomics is the performance of the entire economy, not just a single person, not just a single firm, not just a single market segment, but it is, we take the entire economy, we take the entire country into consideration. And the major economic issues like the gross domestic product, unemployment, inflation, growth rate, ये सारी चीज़ें हैं, जिसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील करते हैं. Now coming to the other aspect of microeconomics and macroeconomics, the area of the study and business application. Microeconomics is the study of a particular market segment. एक मार्केट सेगमेंट को लेंगे, एक इंडिविजुअल फर्म को लेंगे, एक हाउस होल्ड को लेंगे. जब उसका डिमांड ग्राफ, उसका हम लोग डिमांड सप्लाई ग्राफ वगैरह स्टडी करते हैं या इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं, तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. And what does macroeconomics do? See, the scope of and the area of study of macroeconomics is much wider. It considers whole economy, several market segments, in fact all the market segments, सबको कंसिडर किया जाता है. ये कंसिडर किया जाता है कि कैसा भी पूरा मार्केट सेगमेंट चल रहा है, एंड दैट इज़ द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स. Macroeconomics deals with issues like national income, distribution, employment, general price level कैसा चल रहा है, पूरा demand of money, demand of supply money कैसा है. Microeconomics deal is applied to just the internal resources, कि कैसे internal resources या internal issues कैसे चल रहे हैं. लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, वो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखता है, एक्सटर्नल इश्यूज को देखता है. नाउ अदर टॉपिक इज द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद डिमांड, सप्लाई,
factor pricing, product pricing, economic welfare, production, consumption of many more. Of what? Of one individual हाउस होल्ड यूनिट, वन इंडिविजुअल फर्म. जब वैसे बातें करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है. See, and microeconomics is useful in regulating the prices of the product alongside the prices of factor of production. Prices of the product is your prices, जो भी product का prices है वो, और factors of productions are what? Are your land, labor, capital and entrepreneur. On the other hand, macroeconomics, as already has been said, deals with covers with several issues like distribution, national income, employment or unemployment rate, money, जनरल प्राइस लेवल किसी भी इकोनॉमी में कैसा चल रहा है, और बहुत सारे एक्स फैक्टर्स जो पूरी इकोनॉमी को डील करता है. And all the major issues of the economy, जैसे deflation, inflation. Deflation is when there is a rapid fall in all the prices of the products. Inflation is good, तो बहुत ज़्यादा rise कर रहा है. Rising prices, reflation, unemployment क्यों है, poverty क्यों है, पूरी economy as a whole को जब वो deal करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे macro economics का part होता है. Now there are certain limitations as well of both microeconomics as well as macroeconomics, right? None of the things are without limitations. जैसे microeconomics होता है वो basically it is based on impractical presumptions. मतलब आपका individual firm को ले रहा है, कैसे काम कर रहा है, आपको पूरा economy को consider नहीं कर रहा है, right? So once we are considering about the economy, the entire economy should be taken into consideration. It is presumed that there is full employment in the economy, which is not possible. ये तो possible ही नहीं ना, पूरा एक employment में पूरा economy employment चले, right? On the other hand, macroeconomic has been scrutinized that the misconception of composition incorporates, right? There are other limitations as well. It sometimes fails to prove accurate because it considers the entire sector, सब sector को एक जैसा consider करके काम कर रहा है, जो feasible नहीं होता है, वो भी possible नहीं होता है. Because see, it is true only when you consider it, when we talk about macroeconomics, there are various components of macroeconomics that we study about. That is the aggregate demand and aggregate supply. जिस तरह से हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई पढ़ते हैं, वी सब स्टडी अबाउट द इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई, राइट? हम लोग जब मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है तो हम लोग एग्रीगेट, एवरेज, टोटल डिमांड और सप्लाई पढ़ते हैं. तो टोटल डिमांड वो कंसिडर किया जाता है हर एक इंडिविजुअल का, जो हमेशा कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है. So let's come to the topic that we actually have to study, that is macroeconomics. तो अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग डेफिनेशन दिया हुआ है, बट बिफोर वी प्लंज इनटू मैक्रो इकोनॉमिक्स, लेट मी टेल यू व्हेन डिड मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअली कम इनटू बीइंग, या कब इसका इम्पोर्टेंस बढ़ा. क्या हुआ था कि 1929 से पहले इकोनॉमी वाज मोर ऑफ द चाय पर चर्चा फॉर द इंटायर कम्युनिटी, जहाँ पे बहुत अमीर लोग हुआ करते थे या बहुत गरीब लोग हुआ करते थे, और जनरली जब खुशहाली लोग हुआ करते थे. एंड उस समय ये कंसिडर किया जाता था कि जनरली सबके एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, पूरा एम्प्लॉयमेंट है, अच्छे से चल रहा है, और कहीं से भी अगर डिप्रेशन या इन्फ्लेशन कुछ भी होता है तो सब इकोनॉमी अपने आप में एडजस्ट कर सकता है. लेकिन 1939 में देयर वाज ग्रेट डिप्रेशन.
डेट डिप्रेशन 1929 नॉट 1939, 1929 में देयर वाज ग्रेट डिप्रेशन. उसके बाद देयर वाज मिस्टर केन्स, मिस्टर जॉन एम केन्स. इन्होंने बुक लिखी और देन ही रियलाइज कि ऐसा तो नहीं होता है भाई कि जो एम्प्लॉयमेंट हो रहा है वो तो चलता ही, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है वो जो चलता ही जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट्स भी होता है. ठीक है, तो उन्होंने जब देखा कि ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ही फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट आता है और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी आ जाता है. ये डिप्रेशन, ये रिसेशन जो आता है, ये कभी कभी इकोनॉमी अपने आप में ठीक नहीं कर पाता है, क्योंकि जनरल पहले एजम्पशन ये था कि सारा चीज़ वो लोग इकोनॉमी अपने आप धीरे धीरे ठीक कर लेता है. देन देयर केम एन एजम्पशन कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता है कि इकोनॉमी अपने में ठीक हो जाता है. देन ही केम अप विद द बुक द जनरल theory of employment, interest and money, right? And after the publication of that book, the concept of macroeconomics gained massive importance, right? So according to Mr. Boulding, macroeconomics theory is that part of economics which deals with the overall averages and aggregates of the system. हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ओवरऑल पूरी इकोनॉमी के एवरेजेस और एग्रीगेट्स टोटल, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि क्या चल रहा है सिस्टम में, चाहे वो एग्रीगेट डिमांड हो, चाहे आपका एग्रीगेट सप्लाई हो. अकॉर्डिंग टू शैप्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. सबको को हम लोग साथ में लेके तब कंसिडर करते हैं. In the words of Mr. Gardner, macroeconomics concerns with such variables as the aggregate volume of the output of an economy, with the extent to which its resources are employed, with the size of national income, and with the general price level. Resources, as I said, in the economy are limited, इसलिए हम लोग स्कार्स रिसोर्सेज कहते हैं. और हमें क्या करना है, जितना भी हमारे पास लोग अवेलेबल हैं, जितने भी हमारे पास जो भी इनपुट हो रहा है, जो भी पॉपुलेशन है हमारी, उस हिसाब से जो रिसोर्सेज होता है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, सो दैट देयर इज़ मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी. अब ये मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के कारण ही आपका नेशनल इनकम या जनरल प्राइस लेवल, जो भी नेशनल इश्यूज़ है वो कंसिडर किए जाएंगे. नाउ व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. सबसे पहले हम लोग ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों हैं, तो जब हम पूरी इकोनॉमी को लेते हैं तब हम लोग उनका पर कैपिटा एग्रीगेट डिमांड पढ़ सकते हैं, एग्रीगेट किसी भी चीज़ का हम लोग सप्लाई पढ़ सकते हैं, एंड देन वी कैन स्टडी अबाउट कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है. जैसा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है वो 5 ईयर प्लान्स लेके आती है, वेरियस इकोनॉमिक इश्यूज़ लेके आती है, वेरी इकोनॉमिक्स प्लान्स लेके आती है, तो आखिरकार एम्प्लॉय जो वो प्लान्स लेके आएगी तो हाउ विल दे प्रूव ऑन व्हाट बेसिस, राइट? Hence macroeconomic study is done to understand what is the employment rate और unemployment rate. फिर कैसे प्राइजेस इकोनॉमी में स्टेबल होएंगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हम कैसे मेंटेन करेंगे, हम इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को कैसे हमेशा बढ़ा के रखेंगे. Now now let's come to the next topic, that what is the scope of macroeconomics, right? So coming to the macroeconomics, there are 6 major theories and there are certain macroeconomic पॉलिसीज़. तो पहला है कि आपका स्कोप में आता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. द स्टेटस ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमी कैन बी इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा रियल इनकम एज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स. कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे कंट्री की चल रही है, कैसा हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेना है, कैसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना है, राइट? कैसे, व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, what are the different concepts of different elements, what are measurements, कैसे अकाउंटिंग की जाती है, ये सब इसमें बात है when it comes under to the theory of the national income, right? तो वो सारे जितने भी टॉपिक्स जो भी नेशनल इनकम से रिलेटेड होते हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर, बजटिंग, ये सारी आपकी थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम में आती है. देन थ्योरी ऑफ द मनी. तो macroeconomics analyzes the functions of the Reserve Bank of India and the inflow and outflow of the money along with the impact of the employment level. क्या आपका RBI का फंक्शन है, कैसे चल रहा है, ये सब इसमें आता है. Then theory of the international trade. It enlightens upon the export and import of goods or services. In brief, it determines the impact of cross-border trade and duty charged by the economy. आपकी import कैसी चल रही है, आपकी export कैसे चल रही है. Then theory of the employment, very important. This theme
of macroeconomics helps to figure out the level of unemployment and the prevailing employment conditions in the country. Also, to know how it affects the supply, demand, savings, consumption, expenditure behavior, सारी चीज़ें, चाहे वो डिमांड हो, सप्लाई हो, कंजम्पशन हो, जो हम लोग इन फोर्थ कमिंग वीडियोस पढ़ते जा रहे हैं, इन सब चीज़ का डेफिनेशन और इन डिटेल ये सारी चीज़ें क्या होती हैं. Then theory of the general price level. The most important of all is the analysis of the product pricing and how these price levels fluctuate because of the inflation or deflation. Now, there are various macroeconomic policies. We are studying what the scope of macroeconomics. इसके अंदर क्या क्या आ गया, आपकी कुछ macroeconomic theories आ गई and कुछ macroeconomic policies आ गई. तो macroeconomic policies क्या है? एक है आपकी fiscal policy, दूसरी आपकी monetary policy. Fiscal policy क्या होता है? It means meeting the deficit of income over expenditure. It is a form of budgetary decisions, right? जब हम लोग ऐसे डिसीजंस बनाते हैं, जब सरकार डिसीजंस बनाती है ताकि बजट्स के फॉर्म में, तो उसे हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं. और मॉनेटरी पॉलिसी क्या बोलते हैं? जब it is when the Reserve Bank of India, in the collaboration of the government, makes certain changes in the expenses of the country. So make certain changes in the policies in the company of the country, so as to maintain the economic stability and growth in the country by regulating various interest rates. They are known as the monetary policy, right? Now there are certain importance of macroeconomics. Though these are some of the limited importance, there are loads of information of importance of macroeconomics, right? पहला है कि वो ट्रेड साइकिल एनालिसिस. अभी क्या होता है, कभी कोई बिजनेस साइकिल जो होता है, बिजनेस साइकिल आपका ना ऐसे 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 आराम से ऊपर नहीं जाता है. इट गोज़ टू अप्स एंड डाउन्स, बूम्स एंड बर्स्ट, रिसेशन एंड डिप्रेशन, जो भी है इसका एक ट्रेड साइकिल चलता जाता है. तो जो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर टाइमिंग द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस टू अवॉइड और टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी फाइनेंशियल क्राइसिस और एडवर्स सिचुएशंस. फिर इट ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉर्मुलेशन, क्योंकि हम लोग पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो हम लोग ये जान रहे हैं, और नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं. तो बेसिकली वी नो दैट व्हाट इज़ गोइंग अराउंड इन द इकोनॉमी, एंड हेंस इट हेल्प्स द गवर्नमेंट इन मेकिंग वेरियस मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज़, ताकि आप लोग आराम से, ताकि हम लोग आराम से रह सकें, बेसिकली हमारी इकोनॉमी प्रॉपरली फंक्शन कर सकें. इट डाउनसाइजेस द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. अभी गवर्नमेंट पहले ही प्रिपेयर्ड है, तो गवर्नमेंट जान रही है कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, गवर्नमेंट इज़ प्रिपेयर्ड, हेंस इट इज़ मेकिंग नेसेसरी इंटरवेंशंस इन द मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज सो एज टू इफेक्ट जो भी अगर नेगेटिव इफेक्ट आपका इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का हो रहा है तो उसको कैसे वो हटा सकें. देन इट फैसिलिटेट्स द मटीरियल वेलफेयर. The stream of economics deals with a broader perspective of social or national issues. Therefore, the ones who look forward to contributing to the welfare of the society needs to study macroeconomics. कि कहाँ पे क्या चीज़ जो है, we'll study the four sectors of the economy. There are the four sectors of economy. There are household, then there are firms, then there is your government, and then there is rest of the world. Right? ये चार sectors of economy है. अब कौन से सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी हमारे बहुत अच्छी चल रही है, कौन सी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी हमें मैक्सिमम बेनिफिट दे रही है, अगर किसी को, तो हेंस फॉर मटेरियल वेलफेयर मॉनेटरी वाइज अगर किसी को करने का है और सुपर्स को पढ़ना है, तो दे हैव टू स्टडी अबाउट दी मटेरियल वेलफेयर. इट रेगुलेट्स द इकोनॉमिक सिस्टम, ऑब्वियसली बिकॉज हमें इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में पता है, हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जान रहे हैं, हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कम करने की बातें कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक जैसे चल रहा है उससे रिलेटेड है इन जनरल पूरे इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में. तो गवर्नमेंट जो है वो और इकोनॉमिक्स जो है, दे कैन फिगर आउट दैट व्हाट आर द कॉजेज फॉर वेरियस इन्फ्लेशन डिफ्लेशन और वट एवर रॉन्ग विद द इकोनॉमी इज गोइंग, एंड दे विल ट्राई टू रेगुलेट द इकोनॉमिक सिस्टम. दे विल ट्राई टू रेगुलेट, एंड ऑल्सो if there are certain economic issues which comes over, they'll try to nullify them. उस इकोनॉमिक इश्यूज को हटाने की कोशिश करते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. देन अगेन यू अंडरस्टैंड, हम लोग इकोनॉमिक
पॉलिसीज़ का बात की कि हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट किए, हम इकोनॉमिक सिस्टम बनाए, हम इकोनॉमिक इश्यूज़ देख रहे हैं, हम इकोनॉमिक इश्यूज़ रिजॉल्व कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक सिस्टम रेगुलेट कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें मिलके बेसिकली हम इकोनॉमी के डेवलपमेंट की बात ही कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा भी बहुत सारे इम्पोर्टेंस हैं, जैसे हमारा नेशनल इनकम कैसे चल रहा है, नेशनल इनकम क्या है। हम लोग अगर हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग नेशनल इनकम का पूरा कॉन्सेप्ट जानते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक्स टू अंडरस्टैंड द पर कैपिटा इनकम एज वेल। इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेम करने में हेल्प करता है। जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहा है, घट रहा है, कैसे चल रहा है, वो स्टडी में हेल्प करता है, राइट। देन इंटरनेशनली ऑल्सो जो आपके पर कैपिटा इंटरनेशनली ऑल्सो कैसे कंपैरिजन चल रहा है, एक्सचेंज रेट वगैरह कैसी चल रही है, इस सब चीज़ में वो हेल्प करते हैं। Then it helps to study the relationship between the various sectors, because we'll study in the various circular flow income and all this stuff कि कैसे ये सारे जो 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, कैसे इनकम इसमें सर्कुलरली फ्लो करते जा रहा है। सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस सेक्टर्स। नाउ देयर आर वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, मॉनेटरी या फिजिकल पॉलिसीज़ बना रही हैं, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बना रही है, कैसे बना रही हैं, क्या बना रही हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। देन वी स्टडी अबाउट द ट्रेंड्स इकोनॉमी, कैसा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन चल रहा है, हाई आपका ट्रेड साइकिल कैसा चल रहा है, आपका ट्रेड साइकिल सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राइट। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड, एज आई सेड, बिकॉज द फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी इज सेड टू बी व्हाट, इट इज सेड टू बी योर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो आपका एक, हम लोग जब 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं, एक होता है आपका हाउस होल्ड। हाउस होल्ड इज व्हाट, हाउस होल्ड इज अस, यू एंड मी। वी आर स्टडिंग अबाउट दी स्टडी अबाउट वी आर, बिकॉज वी आर द वंस हु आर प्रोवाइडिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वी आर द वंस हु आर कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स। वी आर द वंस who are giving the money to the firms for the producing goods and for consuming goods and services। हम ही लोग जो हैं, हम ही लोग सेव भी करते हैं, राइट। और हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्म्स को हम लोग देते हैं ये गुड्स एंड सर्विसेज, हम लोग फॉरेन सेक्टर हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर को भी देते हैं गुड अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हाउस होल्ड है। देन वी हैव फर्म्स। फर्म्स आर व्हाट, फर्म्स आर द बिजनेस यूनिट्स हु मेक्स द बिजनेस। Then we have our government sector, right? Government sector के बाद last we have the rest of the world or the foreign sector. Now there are certain limitations of macroeconomics, as I said. ये जैसे हम लोगों ने जब limitation of macroeconomics हम लोग पढ़ रहे थे, difference between microeconomics and macroeconomics, there were limited there were few limitations I gave as a comparison, but in studying in detail the limitation of macroeconomics, it there is too much generalization। ठीक है, हम लोग हाउस होल्ड का, आप सोचिए ये हाउस होल्ड का सारा कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं, सारा का सारा एग्रीगेट कैसे करते हैं। तो इट्स टू मच जनरलाइजेशन की सबकी एम्प्लॉयमेंट है, सब काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो कैसे चल रहा है। Now it considers the aggregates as homogeneous, which is not true because they are heterogeneous factors, right? अगर फर्म्स है तो एक फर्म अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है आपका से शूज़ and the other firm which is producing shirts, so how can we add shoes and shirts together? But in macroeconomics the entire thing is considered to be one. Then at times they are misleading and difficult aggregation, कि आपका जो एग्रीगेट लिया जाता है वो कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है। there is fallacy of deduction of inferences. Now there are we at times what happens is हम लोग का जब हम लोग inferences draw करने की कोशिश करते हैं, right? So it is a function of aggregate values, but on interpretation of the individual activities may not be the same as compared to the conclusion drawn on the mass level. Conceptual and statistical complexities. When the individual data have different units, is aggregation becomes very difficult and holds of no value, right? Unnecessary aggregate variables, कभी कभी बहुत सारे unnecessary aggregate variables use किए जाते हैं which is of no value. It neglects individual consumers. अभी वो क्या करे, वो सब कोई को एग्रीगेट लेके चल रहे हैं और ये इंडिविजुअल, हम लोग जैसे अगर मान लीजिए हम लोग कॉफ़ी का ही देखें तो कॉफ़ी में भी कितने सारे ब्रांड हो जाते हैं। दे कैन बी वन नेस्कैफे, दे कैन बी अनदर कैफ़े, वट एवर इट इज़। और इफ़ यू चेक चॉकलेट्स, दे कैन बी डेयरी मिल्क, दे कैन बी किट कैट, लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स। तो क्या है ना, हम इंडिविजुअल नहीं ले रहे हैं, हम लोग सबको एग्रीगेट लेके चल रहे हैं, राइट।
So this can be one of the major limitations of macro